Hello students, we have started with our chapter number 11. The name of the topic was ISLM model. In the last lecture children, we have studied how to derive the IS curve. I told you there are two different types of markets that exist. One is called as the goods market and the another one is known as the money market. So the equilibrium in the goods market is explained with the help of IS curve. I told you the IS curve basically slopes downwards from left to right. Now today's lecture children, we are going to analyze the derivation of LM curve. As I already told you, LM curve basically operates in the money market. So it's concerned with the supply of money and the demand of money. Okay. So talking about the demand and supply of money, now we need to understand that just like any other common market children, the demand and supply of money will determine the rate of interest in the market. अच्छा, तो बच्चों लोग बाकी किसी भी markets की तरह, when we talk about the money market, so whenever the demand for money, क्या बोला मैंने? When the demand for money exactly equals the supply of money, मतलब बच्चों लोग मार्केट में जितना मनी सप्लाई होता है एग्जैक्टली उतना ही मार्केट में जब मनी का डिमांड होता है. सो वी से दैट मनी मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम. सो व्हाट एग्जैक्टली इज एलएम कर्व? Children, LM curve tries to show us the different combinations of rate of interest and income levels at which the money market attains equilibrium. I'm repeating it for you children. अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट और अलग अलग इनकम लेवल्स, अच्छा, जो लेवल पे जाके अपना मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में आता है तो उसको हम लोग क्या बुलाएंगे? यहाँ पे एल एम कर्व करके रिफर करते हैं. अच्छा, नाउ हियर द डेफिनेशन दैट आई टोल्ड यू जस्ट नाउ चिल्ड्रन. ओके, व्हाट द एल एम कर्व शोज डिफरेंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड द इनकम्स एट विच द मनी मार्केट will be in equilibrium. Okay, so that's the definition of LM curve. Acha. Now along the LM curve, the demand for real money balances, like what exactly is the demand for money in the market, acha, depends upon the real money balances. अच्छा, तो LM curve ये points हम लोगों को दिखा दे बच्चों लोग, जहां पे the demand for money, that is liquidity, equals the supply of money, that is M. Now, just like the previous answer children, where I explained you how to derive that IS curve, in this particular topic, we'll be deriving what's known as the LM curve. And as usual, we will be explaining how we have constructed the diagram. That's the derivation of LM curve. So first, let me explain to you how this diagram is derived. And on the basis of that children, I will let you know what explanation we'll be able to write for this diagram. Okay, so the previous diagram children, it was a vertical diagram. We had one below the other. From one diagram we derived the another one. This, as you can see on your screen, it's a horizontal diagram children. Here too we got two different panels. दो अलग अलग panels मिलते हैं आपको. One will be called as panel A and the other one children will be known as panel B. Okay, now panel A of the diagram and panel B, तो मैं आपको पहले डायग्राम बता रहा हूं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग. Okay, so to begin with children, we are going to construct these two different panels first of all. Now, so here children, it's going to be your x axis. क्या रहेगा ये? X axis. अच्छा, and children, this should be your y axis as you draw it here. अच्छा, अभी x axis और y axis में what are the indications that we show? So children, x axis is going to represent what's known as real money balances and the y axis children, as usual, यहाँ पे आपको बताया जाएगा what are the different rates of interest. Then children, here we draw a curve. This is going to be a straight curve that we'll be drawing. Now this straight curve indicates the supply of money by Reserve Bank of India. बच्चों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जितना भी मनी सप्लाई करता है उसके लिए हमने एक कर्व ड्रॉ करके रखा है.
इस कर्व को आपने नाम भी दे दिया चिल्ड्रन, इट विल बी नोन एज एम. अच्छा, now the question arises like you might be thinking, sir, why is this curve in a straight line and why is it perfectly inelastic? Because children, we cannot determine what will be the supply of money. It's only the Reserve Bank of India जो डिसाइड कर सकता है कि मार्केट में मनी सप्लाई कितना होगा, तो उसको हम लोग नहीं बदल सकते हैं, इसलिए उसको हमने परफेक्टली इनइलास्टिक करके दिखाया हुआ है, राइट. अच्छा, देन चिल्ड्रन फ्रॉम बी पैनल टू पैनल ए. अभी यहाँ पे आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट में क्लियर करा के दे रहा हूं, उसको आप अच्छे से समझ के लोगे तभी जाके आपको डायग्राम समझेगा. ओके चिल्ड्रन, व्हेन वी टॉक अबाउट द डिमांड फॉर मनी, what are we talking about when we talk about the demand for money, that is MD? How much money do people demand? Generally people demand a part of their total income which has to be spent on transactions and precautions, right? तो इन अ सिमिलर वे चिल्ड्रन, अगर मैं बोलता कि लाइक मुकेश अंबानी के पास अगर मैं बोलता 56 बिलियन यूएस डॉलर्स का वेल्थ है, डज दैट मीन चिल्ड्रन कि लाइक उसके घर पे सब रोकड़ा रखा रहेगा? नो. हाँ, मैं अगर बोलता कि लाइक मेरे पास 1 करोड़ रुपए, तो इट डजंट मीन कि लाइक चिल्ड्रन आई विल बी हैविंग अ कैश ऑफ 1 करोड़. इट कुड बी लाइक यू नो कि 50 लाख का एक मेरा फ्लैट है, अच्छा एक 10 लाख का कार है, फिर यहाँ पर लाइक 20 लाख का कुछ गोल्ड वगैरह है, कुछ 10 लाख के इन्वेस्टमेंट्स है, और ये सबको मिला के बच्चों इट फॉर्म समथिंग लाइक 1 करोड़. बट वी से लाइक माय इनकम इज 1 करोड़. अभी उस इनकम में बच्चों लोग मेरे पास सपोज एक 5 लाख रुपए का कैश है, तो वो जो कैश अपने पास होता है चिल्ड्रन, दैट इज नोन एज डिमांड फॉर मनी, बिकॉज पीपल जनरली हैव अ टेंडेंसी टू होल्ड अ पार्ट ऑफ देयर टोटल इनकम इन द फॉर्म ऑफ कैश, सो इट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर सम ट्रांजैक्शन पर्पस. सो यहाँ पे बच्चों एक छोटा सा फॉर्मूला तैयार होता है, और वो फॉर्मूला क्या है, तो डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय वाई, जहां पे के क्या होता है बच्चों, इट्स अ प्रोपोर्शन. What it is? Proportion. So suppose if I write here key 1 upon 4, that is 1/4, 25%. अच्छा, how much money do people demand? So 1/4 of their entire income children. अभी हम लोग मान लेते हैं कि लाइक इंडिया का इनकम है ना चिल्ड्रन 1 लाख CR का है. कितना? 1 लाख CR. अभी 1 लाख CR का इनकम जो रहेगा उसमें से सवाल आता है कि लाइक हाउ मच मनी डू पीपल डिमांड. सो आई एम राइटिंग इट हियर अगेन चिल्ड्रन, दैट इज MD is equal to K multiplied by Y, and accordingly children I said 1 upon 4 multiplied by 1 lakh. अभी ये 1 multiplied by 4 into 1 lakh children, what does that mean? कि 1 लाख करोड़ ये इंडिया का नेशनल इनकम है, और इंडिया के लोग उसमें से एक 1/4 अमाउंट दे वांट टू होल्ड देम इट विद देमसेल्व्स बिकॉज दे वांट टू कैरी आउट डिफरेंट ट्रांजैक्शंस. बच्चों अपना जितना भी इनकम आता है तो अपना क्या टेंडेंसी रहता है, हम लोग पूरा का पूरा पैसा बैंक में रखते हैं. जनरली हम लोग उसमें से कुछ पैसा विड्रॉ करके घर पे रखते हैं क्योंकि अपना रोजाना खर्चा होता है. वी हैव टू डू इंडल्ज इनटू दोस डे टू डे एक्सपेंसेस. सो चिल्ड्रन 1 lakh crore का 1/4, that means children it's almost going to be how much? 25,000 crores. क्या आएगा ये? 25,000 crores. अभी 25,000 crores का ये जो इनकम रहेगा चिल्ड्रन, कितना? 25,000 crores का, इसको हम लोग बोलते हैं डिमांड फॉर मनी. मतलब क्या कि इंडिया का इनकम अगर 1 लाख करोड़ का है तो इंडिया का डिमांड फॉर मनी कितना आता है? 25,000 करोड़ का. बाय एनी चांसेस चिल्ड्रन, इफ इंडियाज नेशनल इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम 1 लाख करोड़, इट हैज इंक्रीज टू हाउ मच? 2 लाख करोड़. So अभी 1/4 of 2 lakh crores ना, is going to be how much? The answer will be children 50,000 crores. क्या आता है? 50,000 crores. So what did you notice here children? कि अपने इनकम के ऊपर डिपेंड करता है कि अपना डिमांड फॉर मनी कितना रहेगा. So when India's national income was 1 lakh CR, the demand for money was how much children? That was 25,000 CR. And when India's income level increased to how much? 2 lakh crores. So India's demand for money has also increased to how much? 50,000 crores. Okay. Now how can we apply this children in our diagram here?
इस डायग्राम में हम लोग उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो इट्स लाइक दिस चिल्ड्रन। इनिशियली आप मानोगे कि इंडिया का जो इनकम लेवल है वो कितना है? Y1। इंडिया का इनकम लेवल चिल्ड्रन, हाउ मच इट इज? Y1। अभी Y1 जो लेवल ऑफ इनकम रहेगा, कौन सा इनकम? Y1। तो Y1 लेवल ऑफ इनकम पे सवाल आता है कि लाइक इंडिया का डिमांड फॉर मनी कितना आएगा? तो डिमांड फॉर मनी का कर्व चलो यहाँ पे पैनल ए में ऑब्जर्व करना, जरा आपको सीधा इधर से इधर लिंक करना। सो चिल्ड्रन, आई एम ड्राइविंग दिस लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व। कौन सा कर्व है? लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व। नाउ दिस लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व चिल्ड्रन is actually telling us what is the demand for money when the real income level is how much? Y1. Okay, now the supply of money curve is ready here children. ये vertical वाला क्या आता है? Supply of money। और ये जो downward sloping curve है, this is called as the demand for money. Now demand and supply are intersecting each other children at which particular point? Point E1. So accordingly we can say that demand for money या फिर equilibrium point is E1। तो मार्केट में चलो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा यहाँ पे? I1। and what exactly is the income level that we can show? तो income level is exactly equal to Y1। इनकम लेवल कितना आएगा? Y1 के आसपास आता है इनकम लेवल। अच्छा, whenever the real income will increase in the market, जब मार्केट का रियल इनकम बढ़ जाएगा। So here children, in the B panel of the diagram you can observe that our new level of income has increased here children। कितना हो गया है? Y2। So ये आ गया Y2। तो जैसे आपका इनकम लेवल बढ़ता है बच्चों, तो आपका डिमांड फॉर मनी भी तो बढ़ जाएगा। यस, so our new demand for money will be how much? L2। What did you notice? Whenever there is a rise in the income level, जब भी इनकम लेवल बढ़ेगा तो डिमांड फॉर मनी भी बढ़ेगा। डिमांड फॉर मनी बढ़ने के बाद में ये जो नया वाला डिमांड फॉर मनी का कर्व है उसका नाम क्या है चिल्ड्रन? इट्स कॉल्ड L2। अभी L2 कर्व हमारे M कर्व को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे चिल्ड्रन? तो इट इज इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट E2। तो अभी आपने नोटिस किया क्या कि इक्विलिब्रियम पॉइंट है शिफ्टेड फ्रॉम पॉइंट E1 टू E2। तो मार्केट में चलो रेट ऑफ इंटरेस्ट इनिशियली कितना बताया था हमने? I1। नया रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा? I2। बट यू कैन सी दैट द सप्लाई ऑफ मनी हैज रिमेन कांस्टेंट, राइट? नाउ व्हाट आर वी ट्राइंग टू शो योर चिल्ड्रन? अभी आप क्या करोगे? ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है कौन सा? E1। इसको आप सीधा फर्स्ट वाला जो डायग्राम है ना बच्चों, उसमें आप ऐसे एक्सटेंड करोगे। ओके, और ये जो E2 वाला डायग्राम बच्चों लोग यहाँ पे कौन सा? E2, उसको भी आप यहाँ पे चिल्ड्रन एक्सटेंड करके दिखाओगे ऐसे। तो दिस इज जॉइनिंग विथ E2। नाउ ये जो रेड लाइंस मैंने ड्रॉ किए बच्चों लोग, ये एक कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? एट पॉइंट E1। एंड द अदर वन चिल्ड्रन इट्स इंटरसेक्टिंग एट विच पॉइंट? E2। तो आपने नोटिस किया यहाँ पे आपको दो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स मिल गए, एक E1 और एक E2। फिर आप ये दोनों को भी इधर ज्वाइन करते हो चिल्ड्रन, देन यू विल फाइंड इट एज I1 एंड I2 आर द टू डिफरेंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। तो चलो अभी आप जैसे ही ये पॉइंट्स यहाँ पे लेके जाते हो तो आपको यहाँ पे कुछ इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिल गए। दिस इज पॉइंट E1 and this is point E2। So we are going to draw a straight line. That particular line is known as LM curve, and as you can see children, it's sloping upwards. That means LM curve always slopes upward. Yeah, IS curve is a downward sloping curve. LM curve will be an upward sloping curve children, right? Yes. Now you might get a little confused children, like what exactly is the diagram that we people have derived. So can you just observe the diagram here? I'm going to show you how to construct this diagram. Okay, so we have two different panel children, right? तो आप यहाँ पे this will be called a panel A। अच्छा, उसके बाद में फिर आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे बच्चों पैनल B। Okay, now accordingly children you observe that फिर आप यहाँ पे x और y एक्सिस पे कंस्ट्रक्ट करा के लोगे। चिल्ड्रन, दिस इज गोइंग टू बी योर x एक्सिस ऑफ पैनल A।
अच्छा, उसके बाद में आप चलो वापस से यहाँ पे पैनल ई का y एक्सिस रेडी कराओगे, राइट। अच्छा, तो y एक्सिस इज ऑल्सो रेडी। फॉर द पैनल बी चिल्ड्रन यू गो इन अ सिमिलर वे, जहां पे आप सबसे पहले कौन सा एक्सिस तैयार करते हो, x एक्सिस। उसके बाद में बच्चों लोग आपको रेडी करना है y एक्सिस। अच्छा, अभी y एक्सिस को आप जैसे रेडी करते हो तो दोनों भी डायग्राम के पैनल्स रेडी हो गए अपने पास। ओके, देन चिल्ड्रन आफ्टर दैट आप एक कर्व ड्रॉ करोगे, उस कर्व को आप सप्लाई ऑफ मनी कर्व का नाम देते हो, और आप वर्टिकल तैयार करते हो, क्योंकि मैंने आपको अभी भी एक्सप्लेन किया था कि लाइक इट डज नॉट चेंज। इसको हम लोग नाम क्या देते हैं चिल्ड्रन, तो वी नेम इट डाउन एज एम कर्व। इट मींस द सप्लाई ऑफ मनी विच इज डिटरमाइंड बाय आरबीआई। अच्छा, फिर आप स्टार्ट कैसे करते हो, देखो हियर चिल्ड्रन यू विल अज्यूम दैट इनिशियली कि मार्केट में जब आपका इनकम लेवल इतना रहेगा, इनकम लेवल इतना रहेगा, तो इतना मतलब इतना, सो लेट्स मी कॉल इट एज y1। अच्छा, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट चिल्ड्रन वी आर गोइंग टू अज्यूम कि मार्केट में जब इनकम लेवल y1 है तो आपका डिमांड फॉर मनी जो है ना, चलो क्या है, डिमांड फॉर मनी वो इतना रहेगा। और उस कर्व को फिर आप नाम भी दे सकते हो चिल्ड्रन, यू कैन कॉल दैट कर्व एज एल कर्व। अच्छा, नाउ accordingly children, if the income level increases in India, तो आपका नया इनकम लेवल जो रहेगा ना वो कुछ यहाँ पे ऐसे दिखेगा, ये इनकम लेवल बढ़ गया। ओके, न्यू इनकम चिल्ड्रन मींस न्यू डिमांड फॉर मनी। जब इनकम लेवल y1 था तो डिमांड फॉर मनी L था। जब इनकम लेवल बच्चे लोग y2 पे इंक्रीज होगा, जब इनकम लेवल y2 पे इंक्रीज होता है तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि आपका डिमांड फॉर मनी भी बच्चों लोग इंक्रीज हो गया है, एंड यू हैव डिराइव्ड अ टोटली न्यू कर्व चिल्ड्रन, दैट न्यू कर्व विल बी नोन एज L1। ओके, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन दैट वी हैव चिल्ड्रन हियर। अभी आपको क्या करना है, ये वाला जो आपका कर्व है, ओके, यहां से आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है बच्चों लोग, और वो लाइन इधर से इंसेक्ट होके बच्चों लोग ऐसे जाएगा। ओके, so this is the first joint that we have made here children for the diagram। अच्छा, आप चाहो तो यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो चिल्ड्रन। सपोज ये वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना, कौन सा, ये वाला। अच्छा, उसको आप नाम भी दे सकते हो ना, एज यू कैन नेम इट चिल्ड्रन यू एक्चुअली फाइंड आउट दैट यू कैन फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द मार्केट। तो चलो यहाँ पे अगर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो, क्या ड्रॉ करना आपको, एक स्ट्रेट लाइन, तो आपको मिलता है यहाँ पे ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि ये ओरिजिनल इक्विलिब्रियम है। उसको आप नाम भी दे सकते हो चिल्ड्रन, यू कैन नेम इट डाउन एज E1। अच्छा, लेकिन क्योंकि मार्केट में डिमांड फॉर मनी बढ़ गया है तो उसकी वजह से चिल्ड्रन यू विल नोटिस दैट दिस इज गोइंग टू बी अ न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट यू विल डिराइव हियर। आपको बच्चों यहाँ पे एक नया रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है। जो नया रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा उसके लिए आप यहाँ पे एक कर्व ड्रॉ करते हो ऐसे। तो चलो इनिशियली व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आई कॉल इट एज R1। व्हाट इज द न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट चिल्ड्रन, तो आई कॉल इट एज R2। if sometimes we can call it I1 and I2। अभी आप क्या करोगे, ये जो स्ट्रेट लाइन है बच्चों, ये पॉइंट E1 और ये जो पॉइंट रहेगा आपका E2, इसको पॉइंट या फिर पैनल बी में आप पोस्टिंग करने वाले हो। कैसे, ये स्ट्रेट लाइन को आप सिर्फ एक्सटेंड करोगे चिल्ड्रन। सो सपोज आपने यहां से एक लाइन ड्रॉ किया है जो जाएगा सीधा इधर तक, इधर ज्वाइन किया, और यहां से भी आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, दिस इज गोइंग टू बी अनदर लाइन चिल्ड्रन जो जाएगा एग्जैक्टली इधर तक, बराबर। अच्छा, तो चिल्ड्रन डिड यू फाइंड हियर देयर आर टू डिफरेंट पॉइंट्स दैट यू हैव डिराइव्ड। इस पॉइंट को आप नाम क्या दोगे, E1, और इस पॉइंट को नाम क्या दोगे, E2। Then children you get a straight line like this, and that particular line, okay, will be known as the LM curve। क्या बोलोगे उसको आप, LM curve करके रिफर करते हैं। And as usual children, I told you that LM curve slopes upward। तो आप यहाँ पे उसको L
एम का नाम देते हो चिल्ड्रन. सो दिस इज हाउ वी डिराइव दी LM कर्व. तो ये कंस्ट्रक्शन बताया मैंने आपको. देन चिल्ड्रन जैसे ही हम लोगों ने पूरा का पूरा डायग्राम कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, इन अ सिमिलर वे यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा जो आप एक बार रीड करके रिफर कर सकते हो. डेरिवेशन ऑफ LM कर्व में लिखा हुआ मिलेगा आपको, जैसा है वैसा ही. एंड एज आई टोल्ड यू चिल्ड्रन, everything will be in the similar manner. So I want you to read it like how the diagram has been constructed here. Acha. Now the question arises children like what exactly is the slope of the LM curve? The slope, as I already told you children, like it slopes upward from left to right. It slopes upward from left to right. क्योंकि children it is positively sloped. क्योंकि अगर मार्केट में चलो रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस होता है, if there is a reduction in the rate of interest, then the demand for real money balances will actually reduce. Increase interest rate बढ़ने से लोग अपने पास मतलब एग्जाम्पल के लिए पैसा कम रख के ज्यादा पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं. अच्छा, अभी होता क्या बच्चों लोग यहाँ पे कि टू मेंटेन दिस डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस का जो डिमांड है उसको मेंटेन करने के लिए, ओके, किसके साथ इक्वल करने का, सप्लाई ऑफ मनी के साथ. तो इनकम लेवल हैज टू राइज, मतलब आपको इनकम लेवल बढ़ाना पड़ता. एंड देयरफॉर मनी मार्केट इक्विलिब्रियम इंप्लाइज दैट an increase in the rate of interest is to be accompanied by increase in the income. तो LM कर्व ऑटोमेटिकली फिर कौन सा स्लोप दिखाता है आपको? इट विल बी पॉजिटिवली स्लोप्ड. अच्छा, जितना ज्यादा रिस्पॉन्स रहेगा ना बच्चों फॉर द डिमांड फॉर मनी टू द इंटरेस्ट रेट, तो LM कर्व बच्चों उतना ही स्टीप होता जाएगा. ओके, एंड द डिमांड फॉर मनी इज रिलेटिवली इनसेंसिटिव टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रिलेटिवली LM कर्व इज गोइंग टू बी वर्टिकल. अच्छा, अगर बच्चों डिमांड फॉर मनी ज्यादा सेंसिटिव रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, तो फिर LM कर्व इज गोइंग टू बिकम हॉरिजॉन्टल. और कुछ छोटे छोटे चेंजेस होते हैं बच्चों, तो लेवल्स ऑफ इनकम में बड़े बड़े चेंजेस दिखाई देंगे आपको. दैट्स द स्लोप ऑफ द LM कर्व चिल्ड्रन. अभी स्लोप को एक्सप्लेन अगर आपको करना है तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे? यस, इट्स क्वाइट सिंपल चिल्ड्रन. अगेन ये आप बनाओगे यहाँ पे ऐसे एक एक्स एक्सिस. अच्छा, उसके बाद में बच्चों लोग आपको बनाना है यहाँ पे वाई एक्सिस. फिर आप बताओगे यहाँ पे अपना ओरिजिनल LM कर्व, तो आप ऐसे फ्रीली ड्रॉ कर सकते हो. इसको आप बच्चों नाम दोगे, यू कैन कॉल दैट एज LM कर्व. अच्छा, फिर अगर बच्चों लोग मनी सप्लाई बढ़ा दिया RBI ने, तो आपका LM कर्व राइट की तरफ शिफ्ट होता है एंड यू कैन जस्ट नेम इट चिल्ड्रन एज LM1. But at the same time, children, if RBI reduces the money supply in the market, then your LM curve is going to shift towards the left, and the name that you can give to it, children, is known as LM2. Right? तो इसको हम लोग बोलते हैं चलो, this is called as the shift in the IS curve. अच्छा, but it can exactly happen due to changes in money supply, and the changes in money supply are entirely handled by the Reserve Bank of India, children. We do not have much control over that. इस shifting को आप explain कर सकते हो. And finally, children, the question arises like, ये हमने अलग अलग equilibriums पढ़े. One was called equilibrium in the goods market, another one is called as equilibrium in the money market. अभी दोनों का equilibrium explain करने का रहेगा, तो आप क्या कर सकते हो? तो you have to draw a common diagram, children. So how the diagram goes here? This is your x-axis, and this is going to be your y-axis. फिर गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम करने के लिए हमने कौन सा डायग्राम पढ़ा था? चलो IS कर्व. तो ये ड्रॉ किया है मैंने. दिस इज चिल्ड्रन नोन एज IS कर्व. एंड इफ यू वांट टू एक्सप्लेन द मनी मार्केट इक्विलिब्रियम, देन वी हैव गॉट अ LM कर्व व्हिच इज स्लोपिंग अपवर्ड्स. तो आप इसको भी नाम दे सकते हो एज LM कर्व. अच्छा, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो बोथ द कर्व्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट E, राइट? So that should be the equilibrium point. तो आप यहाँ से एक straight line draw सकते हो चलो इधर तक, right? अच्छा, after drawing that particular line, children, you can just extend this particular line here to the x-axis. तो आपको पता चलता है चलो कि like what is the level of income? तो आप बोलोगे sir, level of income is how much? You can say Y0. And what exactly is the rate of interest? You should say I0. That is the rate of interest. तो इसको बोला जाता है चलो इक्विलिब्रियम द गुड्स मार्केट एंड मनी मार्केट.
So again, children, you got the explanation. I told you this topic is entirely based on construction, nothing else, children. Okay. Now, the question arises, children, like how the questions will appear in your exam. आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे? So there are 2 or 3 types of questions that might be asked. Number 1, derive IS curve. Secondly, they might ask you about the derivation of LM curve. Thirdly, they sometimes also ask you like this: explain the equilibrium in the goods market. तो आप IS curve draw करोगे. Explain the equilibrium in the money market. तो आप क्या draw करोगे? LM curve draw करते हो. हाँ, but by any chances, children, if they ask you explain the equilibrium in the goods market and money market, तो आपको फिर दोनों भी कर्व्स को ड्रॉ करके फिर फाइनली वो LM और IS कर्व को इंटरसेक्ट करा के फिर मार्केट का इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन करना पड़ता है. सो दैट इज समथिंग रिलेटेड टू IS LM मॉडल, राइट? लेकिन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर आएगा जब भी आपके एग्जाम्स होते तब, राइट? सो दैट शुड बी ऑल अबाउट चिल्ड्रन चैप्टर नंबर 11, right? So we'll be meeting in the next lecture with chapter number 12. That should be some theory based chapter, children. So that's all for today. Thank you very much. Bye everyone. Take care. See you in the next lecture.